أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to PMDC online lecture room. This is Hilal Ahmad, lecturer in computer science, PMDC Boys Hyderabad Peshawar. Dear students, today we are going to discuss about the components of function from chapter number 6. The name is function for grade 12. How to create a function? C++ provides some predefined functions such as main function, which is used to execute the code. C++ हमें predefined function provide करती है, जैसे कि main function है जो execute करता है code को. But you can also create your own function to perform certain actions. लेकिन आप अपना भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और उस पर मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. टू क्रिएट ऑफन रेफर टू एज डिक्लेयर्ड अ फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. जब आप अपने फंक्शन को क्रिएट करते हो तो उसको एक फंक्शन का नाम देते हो और इसके साथ पैरेंथेसिस लगाते हो. इसका सिंटैक्स ये है: void my function parenthesis close and after that braces start function of the body start and inside this code to be executed and function of the body closed. My function is the name of the function. Void means that the function does not have a return value. Void तब हम यूज करते हैं कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे. Inside the function the body add code that defines what the function do. इसके अंदर बॉडी के अंदर फंक्शन के बॉडी के अंदर आप कौन सा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो. आप एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम. Components of functions. Each function consists of 3 components. These are: first one is function prototype or function declaration. Second one is function definition. Third one is function call. Function prototyping or function declaration. A function prototype is that part of a function that tells the compiler the name of the function. फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन का वो हिस्सा होता है जो कंपाइलर को बताते हैं फंक्शन का नेम, द टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय द फंक्शन, और साथ में डेटा टाइप का रिटर्न भी बताता है, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और साथ में पैरामीटर्स भी बताते हैं, इफ एनी पैरामीटर्स मतलब फ्लोट, इंटीजर, डबल फ्लोट, जो भी पैरामीटर्स हो वो बताते हैं, द टाइप ऑफ द पैरामीटर्स एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स. टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और पैरामीटर्स का जो ऑर्डर होता है वो बताता है. अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, एंड इज यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर द मेन फंक्शन, और हम यूज करते हैं आफ्टर मेन फंक्शन के बाद. The function prototype for a function named maximum to calculate the maximum number out of 3 integer is given below. Function prototype एक फंक्शन प्रोटोटाइप है जो फंक्शन का नेम है मैक्सिमम, जो कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर 3 इंटीजर्स का. इंटीजर मतलब जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, मैक्सिमम फंक्शन नेम है और इसके जो पैरामीटर है इंटीजर ए, कॉमा इंटीजर बी, इंटीजर सी एंड semicolon. The compiler use function prototypes to validate the function call. Compiler use करते हैं function prototype को जब function को कॉल करता है. In a prototype argument names are optional. Prototype arguments में हमारे पास name optional होता है. However the types are necessary as shown below. और इसके साथ जो टाइप होता है वो नेसेसरी होता है जो इसमें बताया गया है. इंटीजर मैक्सिमम जो टाइप है वो कौन सा रिटर्न डेटा टाइप करेगा, इंटीजर करेगा. इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर.
Function prototype is used in C++ program only when the function is defined after the definition of main function. Function prototype हम तब यूज करते हैं C++ प्रोग्राम में जब फंक्शन डिफाइन होता है आफ्टर द डिफिनीशन ऑफ द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के बाद जब डिफिनीशन फंक्शन हम यूज करते हैं. If the function definition lies before the main function, अगर function definitions हम डिक्लेयर करते हैं main function से पहले, then there is no need for the function prototype. तो फिर हमें function prototype की कोई ज़रूरत नहीं होती. Function declaration. If a user defined function such as my function, अगर यूजर डिफाइन करता है फंक्शन के जैसा कि माई फंक्शन है इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द मेन फंक्शन, जो डिक्लेयर हुआ है मेन फंक्शन के बाद, एन एरर विल अकर, तो ये हमारे पास एरर आएगा क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन से पहले होता है. वाई? इट इज बिकॉज C++ वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि C++ काम करता है टॉप से लेकर बॉटम तक. Which means that if the function is not declared, अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया above the main से ऊपर, the program is unaware of it, प्रोग्राम इससे बेखबर है, नावाकिफ है, कंपाइलर इसको नहीं जानता. जिस तरह ये एक प्रोग्राम है इंटीजर मैन, माई फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, रिटर्न 0 एंड आफ्टर दैट void my function cout I just got executed, then it will display the error. Why? Because function declaration will not declare before the main functions. जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन को मेन फंक्शन से ऊपर नहीं लिखते तो ये आपको एरर देगा क्योंकि कंपाइलर या प्रोग्राम इसको नहीं जानता. जब ये फंक्शन कॉल करता है तो ये फंक्शन मेन फंक्शन से पहले नहीं है, तो लिहाजा ये आपको एरर देगा. Function declaration. However, it is possible to separate the declaration and the definition of the function for code optimization. ये पॉसिबल है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिफिनीशन फंक्शन को सेपरेट लिखो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए. You will often see C++ programs that have function declaration above main function. आपने अक्सर देखा होगा कि C++ प्रोग्राम में हमारे पास जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ऊपर होता है, एंड फंक्शन डिफिनीशन बिलो, और फंक्शन डिफिनीशन जो है हमेशा मेन फंक्शन से नीचे होता है, एंड फंक्शन डिफिनीशन बिलो द मेन फंक्शन, और हमेशा जो ये फंक्शन डिफिनीशन ये मेन फंक्शन से नीचे होगा क्योंकि सबसे पहले आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करना है कि इसमें क्या को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. दिस विल मेक द कोड बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड इजियर टू रीड. कि इसलिए कि आपका जो कोड है वो आपको इजीली समझ भी आएगी और आपको रीड करने में भी आसानी होगी. फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम देखते हैं. void my function. void का कंसेप्ट हमने पढ़ा कि void किसके लिए यूज होता है. द मेन मेथड इंटीजर मेन my function. दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन void क्योंकि इसको हमने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर की. आफ्टर दैट कॉल द फंक्शन. माई डिफिनेशन दैट इट विल कॉल द माई फंक्शन, रिटर्न 0, एंड फंक्शन डिफिनेशन इनसाइड दिस फंक्शन डिफिनेशन में हम क्या करते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन का जो नेम है इधर लिखते हैं और इसके अंदर जो डिस्प्ले मैसेज होता है वो फंक्शन डिफिनेशन में हम लिखते हैं. जबकि दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में यहाँ पे सेमीकोलन खत्म होता है जबकि फंक्शन डिफिनेशन में सेमीकोलन यहाँ खत्म नहीं होता. तीसरी डिफरेंस क्या है? तीसरी डिफरेंस यह है कि ये इसकी जो बॉडी है मतलब cout इसकी जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है इसमें हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम मैसेज को डिस्प्ले नहीं कर सकते. चौथी डिफरेंस क्या है
कि फंक्शन डिक्लेरेशन को हमेशा हम मेन फंक्शन से ऊपर लिखते हैं, जबकि फंक्शन डिफिनीशन को मेन फंक्शन के बाद हम लिखते हैं. एंड यू कैन सी हियर इन दिस प्रोग्राम. The other one is function definition. A function definition specifies what a function does. Function definition हमें ये बताते हैं कि फंक्शन क्या करेगा. It has two parts. इसके दो हिस्से होते हैं. A declaration or header. The other one is function body enclosed in braces. दूसरा हिस्सा जो फंक्शन बॉडी होते हैं जो ब्रेसेस में हम बंद करते हैं. The body of the function code be executed. इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू द फंक्शन प्रोटोटाइप विद द ओनली डिफरेंस दैट इट हैज द वेरिएबल नेम्स फॉर द पैरामीटर्स एंड विदाउट सेमीकोलन. फंक्शन डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम फंक्शन प्रोटोटाइप की तरह है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो वेरिएबल नेम्स का है, पैरामीटर्स का, और दूसरी जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो सेमीकोलन है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सेमीकोलन लगाते हैं, जबकि फंक्शन डिफिनीशन में हम सेमीकोलन नहीं लगाते. और दूसरा जो है वेरिएबल्स. अब इधर कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन. हम इधर एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं, इंटीजर मैक्सिमम, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड. द सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन इज द फंक्शन बॉडी. और फंक्शन डिफिनीशन की जो सेकंड चीज है वो फंक्शन बॉडी होती है. It contains the actual statements that will perform the intended task and is always enclosed in braces. और जो इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, जो हमें एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, हम उसको इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं ब्रेसेस में. द होल फंक्शन डिफिनीशन इज शोन बिलो. इसका जो होल फंक्शन डिफिनीशन है, हम अब ये फंक्शन डिफिनीशन है हमारे पास. फंक्शन डिफिनीशन में क्या है हमारे पास कि इंटीजर मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड. एंड आफ्टर दैट द फंक्शन बॉडी इंटीजर मैक्सिमम, मैक्स इज इक्वल टू एक्स इफ वाई इज ग्रेटर देन मैक्स. अगर वाई ग्रेटर है मैक्स में तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वाई होगी. इफ अगर z is maximum greater than maximum, then maximum value is z. रिटर्न मैक्स, और हमारे पास जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो रिटर्न करो. तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन डिफिनीशन में हम क्या करते हैं कि इसकी जो ब्रैकेट है, इसकी जो पैरामीटर है, हम उसको इंक्लोज नहीं करते, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम पैरामीटर्स को इंक्लोज करते हैं विद सेमी कॉलम्स, लेकिन इधर हम इंक्लोज नहीं करते. और इसकी एक अपनी बॉडी होती है जो हम डिस्प्ले करते हैं. फंक्शन बॉडी को मतलब इसके अंदर जो मैसेज होता है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो इसका अंदर जो फंक्शन कोड होता है, फंक्शन बॉडी का जो कोड होता है, वो इनसाइड द फंक्शन डिफिनीशन में हम लिखते हैं. जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, हम उसको इनक्लोज करते हैं सेमीकोलन के जरिए से, और इसकी जो वेरिएबल्स है वो भी हम पास नहीं करते. तो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि फंक्शन डिक्लेरेशन को हम मेन फंक्शन से ऊपर लिखते हैं, जबकि फंक्शन डिफिनीशन को मेन फंक्शन के बाद. फंक्शन कॉल डिक्लेयर द फंक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. फंक्शन डिक्लेरेशंस डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता. दे आर सेव्ड फॉर लेटर यूज. ये सेव्ड होता है लेटर इस्तेमाल के लिए. एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड. और ये एग्जीक्यूटेड होगा बाद में जब इसको कॉल किया जाए. टू कॉल अ फंक्शन, जब एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और राइट द फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम लिखो, फॉलोड बाय टू पैरेंथेसिस, और साथ में दो पैरेंथेसिस लगाओ, एंड सेमीकोलन, और साथ में सेमीकोलन भी लगाओ. In the following example, my function is used to print a text, the action when it is called. मदरजल एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, my function, जो टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं जब इसको कॉल किया जाता है. फंक्शन कॉल एग्जाम्पल, क्रिएट अ फंक्शन. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाइट माई फंक्शन, हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया माई फंक्शन के नेम से. मैंने आपको पहले ही बताया कि फंक्शन की पहचान ये है कि जब इसके साथ पैरेंथेसिस हो, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई.
सी आउट में हमने क्या लिखा, वेलकम टू PMDC, फंक्शन की बॉडी क्लोज। यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के साथ इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई माय फंक्शन। इसको अभी इनसाइड मेन कॉल द फंक्शन, अभी ये फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहा है। जब इसको कॉल कर रहा है तो इट मीन्स वेलकम टू PMDC, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो वेलकम टू PMDC, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल। मल्टीपल टाइम्स फंक्शन कॉल, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। आप एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं। सपोज वही एग्जांपल है, वाइड माय फंक्शन सी आउट वेलकम टू PMDC इंटीजर में। आपने एक दफा माय फंक्शन को कॉल किया, दूसरी दफा माय फंक्शन को कॉल किया, तीसरी दफा माय फंक्शन को कॉल किया, तो आप मल्टीपल टाइम्स जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। A function call is a statement in the calling function. Example given main function to execute the code of the function. Consider the following statement. फंक्शन कॉल हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो कॉलिंग फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जो मेन फंक्शन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इस तरह मैक्सिमम ABC, द फंक्शन कॉल हैज द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स दैट आर पास टू द फंक्शन डिक्लेरेशन, और इसकी जो आर्गुमेंट्स होती है वो पास होती है फंक्शन डिक्लेरेशन से। द आर्गुमेंट्स इन दिस कॉल आर A, B and C। इसके मैक्सिमम का जो फंक्शन है इसकी जो आर्गुमेंट्स है वो A, B and C है। द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फंक्शन। मदरजेल प्रोग्राम आपको दिखाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फंक्शन विच इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप, definition and call. These are the program which show the function declaration, function call and function definition. Hash include iostream.h, hash include connew.h using namespace std. Integer sum, इसकी जो रिटर्न डेटा टाइप वो इंटीजर होगा। सम हमने एक फंक्शन का नाम दिया है, और इसकी जो पैरामीटर्स है इंटीजर x, इंटीजर y। दीज आर कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया मेन बॉडी से पहले। अभी मेन बॉडी के बाद बॉडी स्टार्ट होती है, इसकी जो बॉडी है मेन फंक्शन की वो इंटीजर A, B है। मतलब हमने डेटा टाइप लिया इंटीजर A और B, डेटा टाइप इंटीजर लिया और फिर एक वेरिएबल लिया A और फिर दूसरा वेरिएबल लिया B। A को हमने असाइन किया 5, B को हमने असाइन किया 6। सम A और B, अभी जो सम का फंक्शन है इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, इसको हमने अभी फंक्शन कॉल किया है A और B। फंक्शन कॉल, इन फंक्शन कॉल वी राइट द फंक्शन नेम। फंक्शन कॉल में हम जस्ट फंक्शन नेम लिखते हैं एंड टू शो द आर्गुमेंट्स, और जो आर्गुमेंट्स पास होते हैं वो हम लिखते हैं। अभी इस फंक्शन को इधर से कॉल किया गया है, जो वेरिएबल थे A और B हमने इधर पास किया इंटीजर। अभी ये मेन फंक्शन जो है इसकी बॉडी यहाँ क्लोज होगी। अभी दूसरी फंक्शन डिफिनीशन की तरफ आते हैं जो मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट होता है। इंटीजर सम, इंटीजर x, इंटीजर y। These are called the function definition. Again, I can show that the difference between the function declaration and function definition is that the function declaration enclosed in semicolon, while in function definition does not enclose in the semicolon. The other difference is that the function declaration always write before the main function, while the function definition always write after the main function. And the other difference is that the function definition have the body of the functions. You can see an integer z. Z is equal to x plus y. C out z. अभी इंटीजर z हमारे पास जो वैल्यू थी 5 और 6, वो हमने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, उसका डेटा टाइप इंटीजर है और z है। अभी z क्या होगा, इसके अंदर x प्लस वाई की जो वैल्यू है 5 प्लस 6 वो z में स्टोर होगा, और आफ्टर दैट सी आउट में जो वैल्यू थी z में वो आपको डिस्प्ले होगा। आपके साथ यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा 11। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है
कि हमने इसके अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन भी डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल भी डिक्लेयर किया और फंक्शन डिफिनीशन भी डिक्लेयर किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।